Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is probability density function, that is PDF. I have divided this topic into two parts. Presently we are talking about part 1 because there are two types of numericals that are expected as far as this PDF is concerned. It is from the subject signals and systems. Now without wasting the time, let us start the session. The notation for PDF is small f base capital X of X. Do remember one thing. Earlier I have created two videos. Please do watch those videos because everything is interlinked. Now do remember the basic things. What we studied earlier, we have studied this notation, capital F base capital X of X. This notation is for CDF, cumulative distribution function, whereas the small f x of X is the notation for PDF, probability density function. Now mathematically it is defined as PDF, that is small fx of X, is derivative d by dx of CDF. Do remember this capital F represents CDF, whereas this small f represents PDF. So we can easily say PDF is a derivative of CDF. Now these properties are most important because numericals are based on these properties. First property is area under PDF curve is 1. That means you can well say like this, area under PDF curve is unity. हम लोगों को पता है एरिया अंडर कर्व मतलब इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ता है. सो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स ऑफ एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ इज इक्वल्स टू 1. सेकंड प्रॉपर्टी, CDF इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ. अब देखो डिफाइनिंग इक्वेशन में हमने डिस्कस किया कि पीडीएफ डेरिवेटिव होता है CDF का. इसका रिवर्स केस CDF इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ. इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंटीग्रेशन के लिमिट्स देख लो. लोअर लिमिट इज माइनस इंफिनिटी विच इज द स्टैंडर्ड लिमिट. अपर लिमिट इज ऑलवेज ऑन ऑलवेज x. While calculating CDF, do remember this concept. Upper limit is always x. So fx of x, capital Fx of x, that is CDF is integration minus infinity to x of PDF. Third property, you can calculate the probability between x1 and x2. So P means probability of x1 less than x less than equals to x2 is integration x1 to x2 small fx of x. मतलब integration of PDF under these limits x1 and x2 will give you value of probability. And fourth property is fx of x, that is PDF, is greater than or equals to 0. It means PDF is always positive. The first numerical is a continuous random variable has following distribution function. This is the given equation. Now keep in mind, small f represents PDF. इसमें दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं. एक PDF दिया रहेगा and then something is asked to calculate, और CDF is given. तो नोटेशन इसमें मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज CDF और PDF. तो नोटेशन से पता चलता है स्मॉल f means it is PDF. So it is given as kx square in the range 0 to 2 and equals to 0 elsewhere. First part, find normalizing factor k. Second part, probability between 0.2 to 0.5. अब देखो ये जैसे मैंने पहले बताया है कि you need to make use of the properties. So to calculate first part, that is normalized factor, we will be using this property. First property, area under PDF curve is 1. This is the formula. So in the formula, limits are minus infinity to plus infinity fx of x dx is equals to 1. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. इस केस में लिमिट्स आएंगे 0 to 2. These are the given limits. ये तो जनरल लिमिट्स हो गए. So I will put the limits 0 to 2. fx of x is kx square dx. K is constant, you can take it outside the integration. So integration 0 to 2 x square dx. अब देखो ये इंटीग्रेशन आप कैल्सी पे भी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट टू अवॉइड द मिस्टेक्स. इफ यू डोंट नो कि कैल्सी पे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन वीडियो हाउ टू यूज द कैलकुलेटर. सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप लोगों को पता नहीं है कैल्सी पे कैसे इंटीग्रेशन निकालना है तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. अदरवाइज यू कैन वेल डू इट मैन्युअली ऑल्सो, नो इश्यूज. तो ये इंटीग्रेशन है. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. जैसे देखो ये याद रखना, इंटीग्रेशन कैलकुलेटर पे करते वक्त लिमिट शुड नॉट बी इंफिनिटी और लिमिट शुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ नोटेशंस. बाकी सब केसेस में आप कैल्सी पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. सो आई विल कीप दिस केस as it is. Presently I am solving it manually. So integration of x square is x cube by 3. Limits are 0 to 2.
तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल्स टू 1 है, देखो आर जस्ट साइड 1 है, देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं के। अब अपर लिमिट पुट करेंगे 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन 3 is 0, so still I will write 0 upon 3 into k as it is equals to 1, तो ये आएगा k into 2 raised to 3 8 by 3, this is 8 by 3 is equals to 1, therefore k is equals to 3 by 8. This is the value of k, that is answer of first part which is normalizing factor. अब second part में हमें इंटीग्रेशन मतलब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करता है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन x1 एंड x2 इज इंटीग्रेशन x1 to x2 fx of x dx। अब इस केस में ये प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी 0.2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 0.5 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो इसमें लिमिट्स आ रहे हैं वही इंटीग्रेशन के लिमिट्स लेना है 0.2 to 0.5। अब देखो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं x1 to x2 मतलब 0.2 to 0.5, fx of x dx, fx of x मतलब गिवन इक्वेशन ये वाला kx square एंड विदाउट फेल डू पुट द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा है, इट इज 3/8, तो इसके अंदर आएगा 3/8 x square dx। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी बताया आप डायरेक्टली कैलसी पे ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन वेल डू इट मैन्युअली ऑल्सो। तो ये मैं ऐसे करता हूँ 3/8 बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर x square dx आएगा, लिमिट्स आएगा 0.2 to 0.5, सेम लाइक द प्रीवियस केस ये 3/8 एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ 3, lower limit 0.5 upper lower limit 0.2 upper limit 0.5, so it will be 3/8, put the upper limit मतलब 0.5 cube minus 0.2 cube upon 3. If you solve it on the calculator, I mean this part, you will get the answer 0.0146. So this is the answer of the probability. Next problem, for the PDF given by small fx of x is equals to kx in the range -1 to 2 equals to 0, otherwise find k, value of k is constant, CDF, then probability between -1 to 1 and probability x greater than or equals to 1. Like the previous sum, calculation of first part, that is calculation of a, will be using first property, हमेशा k का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यही प्रॉपर्टी यूज करना है। What's the property? एरिया अंडर PDF कर्व इज 1, देखो यहाँ पे लिमिट्स है -∞ to +∞। These are the general limits. According to the given limit, you will have to make the change. So in this problem, the limits will be -1 to 2 because these are the given limits. इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखना है, fx of x, small fx of x, मतलब जो गिवन वैल्यू है वो लिखना है, that is kx dx is equals to 1 because this property indicates answer of integration is equals to unity, that is 1. अब ये सॉल्व करना है, के बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन -1 to 2 x dx is equals to 1। जैसे मैंने अभी बताया ये इंटीग्रेशन आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, फिर k into that value is equals to, उससे k आ जाएगा। If you want to solve it manually, you can well solve this like the previous case, it is x²/2, integration of x is x²/2, limits -1 to 2 is equals to 1। तो ये सिंप्लीफाई करते जाओ, मतलब पुट अपर लिमिट देन पुट लोअर लिमिट, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 2/3। ये आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक बार अपर लिमिट पुट करोगे 2 स्क्वायर माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक मत कर लो, -1 स्क्वायर इज +1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1, तो उससे k का वैल्यू आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2/3। अब सेकंड पार्ट, in the second part it is asked to calculate the value of CDF। अब कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कहाँ पे करते हैं, देखो CDF के लिमिट्स है -∞ to x, ऐसे याद रखना है। CDF कैलकुलेट करते वक्त अपर लिमिट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फिक्स्ड व्हिच इज x। तो इस केस में CDF इज डिनोटेड बाय कैपिटल fx ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देख लो ध्यान से सुन लो, लोअर लिमिट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इज -∞, बट व्हाट इज अवेलेबल लोअर लिमिट -1। फॉर्मूला के हिसाब से -∞ लोअर लिमिट है, लेकिन अवेलेबल लोअर लिमिट इज -1, सो आई विल पुट लोअर लिमिट -1। जैसे मैंने अभी भी बताया, CDF कैलकुलेट करते वक्त अपर लिमिट हमेशा फिक्स रहेगा व्हिच इज x, सो अपर लिमिट इज x।
अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स मतलब के एक्स dx. We have just now calculated the value of k and it was 2 by 3, right? It was 2 by 3. So put the value. So I will write it like this: integration minus 1 to x 2 by 3 x dx. अब देखो जैसे मैंने बताया कि लिमिट्स अगर नोटेशन के टर्म्स में यू कैनॉट सॉल्व इट ऑन द कैलकुलेटर, ये मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. So 2 by 3 I will take it outside. Integration of x will be x square by 2. लिमिट्स है -1 to x 2 by 3 एज इट इज. अब देखो x के बदले में पहले लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे. x के बदले में अपर लिमिट x ही है तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करना है. लोअर लिमिट इज -1 सो -1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया. सो therefore I will get fx of x is equals to this 2 by 3 as it is. अब देखो ये x स्क्वायर, ये -1 ब्रैकेट स्क्वायर इज +1 मतलब न्यूमरेटर में आएगा x स्क्वायर -1. देखो -1 का स्क्वायर +1 है, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा. सो इट विल बी x स्क्वायर -1 अपॉन 2. ये 2 गेट्स कैंसल्ड. therefore final answer of CDF is equals to x square minus 1, this is x square minus 1 upon 3. So this is the answer of CDF. Now let us do the calculation of probabilities. प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करने के लिए एज आई सेड ऑलरेडी ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी यूज करना है. तो पहला प्रोबेबिलिटी देखो, इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी बिटवीन -1 to +1. सो आई विल राइट इट लाइक दिस: प्रोबेबिलिटी बिटवीन -1 to +1 is integration -1 to +1. जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है वही लिखना है, -1 to +1. fx of x dx, k is 2 by 3, so I am directly writing 2 by 3 x dx. अब ऐसे वाले इंटीग्रेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हो. इफ यू डू दिस कैलकुलेशन ऑन द कैलकुलेटर, दिस आंसर विल बी, जैसे 2 by 3 ये मैन्युअली करके देखते हैं, x square by 2, limits are -1 to +1, so it is 2 by 3 1 minus of -1 square upon 2, मतलब ये आंसर 0 आ जाएगा. So if you do it on the calculator also you will get answer 0. Next part, probability x greater than or equals to 1. अब इसके लिमिट्स क्या लेना है. देखो हमने अभी तक ये लर्न किया, x1 to x2 होता है तो लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 ऐसे सोचना है. x greater than or equals to 1 मतलब लोअर लिमिट इज फिक्स्ड एज 1. x greater than or equals to 1 मतलब लोअर लिमिट 1 हो गया. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इसलिए 1 लिखा. और ग्रेटर देन के लिए व्हाट इज अवेलेबल हाईएस्ट लिमिट, अवेलेबल हाईएस्ट लिमिट इज 2, इसलिए लिमिट्स विल बी 1 to 2. It will not be -1 to 2, it will be 1 to 2 because it is asked to calculate probability for x greater than or equals to 1. बाकी इंटीग्रेशन के अंदर fx of x मतलब 2 by 3 x dx. अब ऐसे वाले डायरेक्टली आप कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो. सो आई एम सॉल्विंग इट मैन्युअली. x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 1 to 2, ये आएगा 2 by 3. तो अपर लिमिट पुट करेंगे 2 स्क्वायर मतलब 4 minus 1 अपॉन 2 गेट्स कैंसिल. ये 4 - 1 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1. So this is the way how you can solve the numericals related to PDF. Next problem, a PDF of random variable is defined by, अब देखो ये थोड़ा अलग न्यूमेरिकल है, दो इक्वेशंस दिए इसमें in terms of x. So first is kx square in the range 1 to 2, second kx in the range 2 to 3, 0 otherwise. Find first part value of k, second probability x greater than or equals to 2, third probability x less than 2, and fourth CDF मतलब CDF कैलकुलेट करना है. अब पहला पार्ट, अभी तक हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन का कैलकुलेशन कर रहे थे, दो इक्वेशन से, इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस ऐड करके आंसर निकालना है. हाउ टू डू इट? as usual we will be using first property to calculate this thing, value of k. This property is area under PDF curve is 1. लिमिट्स देखो -infinity to +infinity. पहला केस देखो, लिमिट्स लेना है 1 to 2. सो आई विल राइट इट लाइक दिस: लिमिट्स 1 to 2. इंटीग्रेशन के अंदर आएगा के एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म ऐड करना है क्योंकि इसमें दूसरा टर्म है. सेकंड टर्म के लिए अवेलेबल लिमिट्स क्या है? 2 to 3, ये 3 है, 2 to 3.
सो इट इज 2 to 3 और इसका इक्वेशन क्या है के एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी वेरिएबल डी एक्स आएगा बाय डिफॉल्ट इक्वल्स टू 1। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है के 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के इससे बाहर ले लो के इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स डी एक्स। अब मैंने अब इससे पहले भी बताया ये ऐसे वाले इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कैलसी पे कर सकते हो या मैन्युअली भी कर सकते हो। मैन्युअली करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन का इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ इक्वल्स टू 1 है ये। तो इसके पहले इंटीग्रेशन का आंसर आई विल डायरेक्टली टेल यू द आंसर, आप लोगों को ये कैलसी पे करना है। सो दिस विल बी 7/3 प्लस सेकंड टर्म के एज इट इज, this answer is 5/2 equals to 1। तो k कॉमन लेंगे, so k in the bracket 7/3 plus 5/2 is equals to 1। therefore you will get k in the bracket 29/6। LCM लिया मैंने, 7s are 2, 3s are 5, this is 29 equals to 1। therefore value of, यहाँ पे लिखता हूं मैं, therefore value of k ये इधर जाएगा, so it will be reciprocal, that is 6/29। this is the first answer, that is we have calculated the value of k। अब second part, ये k का value हो गया। second part we have to calculate the probability x greater than or equals to 2। अब देखो probability का ये फॉर्मूला है, whenever the condition is like this greater than or equals to 2, मतलब probability के लिए lower limit 2 आएगा, greater than or equals to 2, और ideally upper limit will be infinity, but the signal is not available till infinity। what is available upper limit 3। और देखो ये 2 to 3 वाला रेंज यूज करेंगे हम लोग, why because given condition is probability x greater than or equals to 2, मतलब 2 to 3 वाला 2 to 3 रेंज वाला इक्वेशन यूज करेंगे, that is kx। सो यहाँ पे पहले मैं kx लिखता हूं, लोअर लिमिट 2 है, अपर अवेलेबल लिमिट रिलेटेड टू 2 इज 3। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लोअर लिमिट 2 दिया इसलिए 2 to 3 रेंज वाला जो इक्वेशन है दैट इज kx। आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये इसका इक्वेशन हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो इंटीग्रेशन 2 to 3 k का वैल्यू है 6/29 x dx। ये इक्वेशन सॉल्व करना है, सो 6/29 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx। कैलसी पे सॉल्व कर लो या मैन्युअली करना है तो x स्क्वायर बाय 2 आएगा, फिर लिमिट्स पुट कर लो। सो दिस आंसर विल बी 15/29। सो दिस इज द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अब ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। अब देखो मेक द थिंग सिंपल, ये भी आप ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, बट व्हाई डू यूज फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन? लेट अस मेक यूज ऑफ सिंप्लीफाइड टेक्निक। इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसमें से x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का वैल्यू है अपने पास, रिमेनिंग पार्ट इज x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 विल बी 1 माइनस दिस वैल्यू, दैट इज 1 minus 15/29। so this answer will be 14/29। now let us calculate the value of CDF। for calculation of CDF we have to use this formula, capital Fx of x is integration minus infinity to x small fx of x dx। small f मतलब PDF। अब देखो इसमें दो रेंज है, so accordingly I will write the formula like this। जैसे मैंने इससे पहले के सब में भी बताया है, ideal lower limit is minus infinity। for first part available lower limit is 1, तो available lower limit is 1। upper limit हमेशा CDF के लिए x रहेगा, and in this range given equation is kx square, but we have the value of k 6/29, so it is 6/29 x square। ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं CDF के लिए, सो नोटेशन इज कैपिटल F बेस x ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये पहले रेंज का हो गया, प्लस सेकंड रेंज। व्हेनेवर 2 और 3 रेंजेस आर गिवन यू शुड गो ऑन एडिंग द वैल्यूज। सेकंड रेंज फिर से सेम लॉजिक यूज करना है, अवेलेबल लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट हमेशा x लेना है, वैल्यू इज kx मतलब k का वैल्यू 6/29, सो इट इज 6/29
x dx, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट वेरिएबल dx आएगा. लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. जैसे मैंने बताया, अगर x के टर्म्स में लिमिट्स है तो यू कैनॉट कैलकुलेट इट ऑन द कैलकुलेटर, मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा. 6/29 कांस्टेंट है, बाहर लेंगे इंटीग्रेशन. देखो ये 6/29 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर x स्क्वायर आएगा. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3 लिमिट्स 1 to x प्लस सेम लॉजिक 6/29 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर x आएगा. x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज x. लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर. ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज 6/29 इन द ब्रैकेट. देखो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, x के बदले में x ही पुट करना है, तो ये आएगा x³ माइनस लोअर लिमिट है 1, so 1³ becomes 1 minus 1 upon 3 as it is. ये एक पार्ट का हो गया, मतलब फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन. प्लस सेकंड इंटीग्रेशन 6/29. अब देखो फिर से सेम लॉजिक, x के बदले में x आएगा, सो इट इज x² माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 2 स्क्वायर इज 4, x² माइनस 4 अपॉन ये वैल्यू है 2, दिस इज 2. सो यू कैन वेल सिंप्लीफाई इट फर्दर. मतलब ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, 6/29 इन द ब्रैकेट x³ माइनस 1/3 प्लस x² माइनस 4/2. सो this is the answer of calculating CDF for the given sum. So dear students, I have covered first type of numericals based on PDF. Now let us do the second type of numericals related to PDF in the next session. So that's it for today's session. Thank you. Thanks a lot for watching this video.